Good morning. So welcome to my class again. So yesterday we were telling about telling about Pythagoras theorem, and that Pythagoras theorem, I have told you the statement that in a right triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides, or you may tell the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the perpendicular and the base, or you may tell the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the opposite and adjacent. Good. So that statement already we have told. Right now we are going to prove this, and for proving this theorem we need a prerequisite concept, and that prerequisite concept I told you that in a right triangle, if you draw a perpendicular from an opposite vertex to the hypotenuse, then the two small right triangles formed, and that two small right triangles along with that parent one, that bigger one, that given one, ये तीनों क्या होता है, सिमिलर होता है आपस में. मतलब पहला स्मॉल वाला जो दो स्मॉल बनेंगे वो फर्स्ट स्मॉल वाला दूसरा स्मॉल से होगा, फर्स्ट स्मॉल वाला मेन बड़े वाले से होगा, और सेकंड स्मॉल वाला मेन बड़े वाले से होगा. ये कल प्रीवियस क्लास देख लेना, इसमें समझ में आ जाएगा व्हाट इज द प्री रिक्विजिट कंसेप्ट टू गो टू दिस पाइथागोरस थ्योरम. ये करने से पहले कौन सा प्री रिक्विजिट कंसेप्ट हमारे को जरूरत होगा वो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया. दैट इज व्हाई डोंट मिस ए सिंगल क्लास. अगर आपको पढ़ना है तो आप हर एक क्लास के साथ एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होता है. व्हाई? बिकॉज 15 मिनट्स इज नॉट सफिशिएंट. अब 15 मिनट्स में आपको प्री रिक्विजिट कंसेप्ट भी बता दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम भी बता दूंगा, डायग्राम भी, ऑल दैट इज नॉट पॉसिबल. तो हर एक क्लास के साथ आप रिलेट करके रखना. गॉट इट ना? सो दैट yesterday we told you about that prerequisite concept is that in a right triangle, if you draw a perpendicular in a right triangle, if you draw a perpendicular from the opposite vertex to this hypotenuse AC, let BD is the perpendicular on AC, then ABD is the right triangle, BD is the right triangle. These two right triangles are formed. From the parent one, ABC is the main right triangle, and from that right triangle two small right triangles are formed. That is, as a whole, three right triangles we are having now, and all the three right triangles are similar to one another. That means ये ऊपर वाला small ABD जो होगा वो स्मॉल वाला दोनों पे सिमिलर होगा, ये स्मॉल वाला मेन एबीसी से भी होगा, और बीडीसी जो स्मॉल वाला है ये भी एबीसी से होगा ना. हाउ टू नेम दिस मैं प्रीवियस क्लास में बता दिया. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम. दिस नॉलेज विल बी, दिस कंसेप्ट विल बी वेरी मच यूजफुल इन पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम, so first you have to write the statement. Yesterday we wrote the statement. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides, or the sum of the square of the perpendicular base, or sum of the square of the adjacent and opposite arc. That statement you have to write. Then from the diagram it is given, triangle ABC is right angled at B and BD perpendicular to AC. This is the given condition. Got it? To prove AB square plus BC square equal to AC square. This is what we need to prove. This is the Pythagoras theorem. Yes. Numerically it is, geometrically it is. If you represent this perpendicular, if you represent this AB as perpendicular, BC as base, AC as hypotenuse, then this is what we need to prove. इसी को तो prove करना है. Perpendicular plus base square equal to hypotenuse square. वो जो स्टेटमेंट है इसी को प्रूव करना. अभी हमने क्यों ऐसे कर दिया? वैसे भी लिखता कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन ऐसे क्यों लिख दिया? वाई बिकॉज़ वी आर टेकिंग अ डायग्राम, गिवन भी उसके हिसाब से लिख दिया. सो दैट इज व्हाई हमने इसके फ्रॉम द डायग्राम वी नीड टू प्रूव दिस. गॉट इट? सो प्रूव कैसे करेंगे? सी,
ये प्रूव कैसे करेंगे? दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इतना आप लिख लो, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, गिवन लिख लो, टू प्रूफ लिख लो। अब ये सबको मिटा दूंगा, वाई बिकॉज इतना तक आएगा, अगेन फिर मिटाना पड़ेगा, तो मैं सारा मिटा देता हूं। ये दैट इज स्टार्टिंग से प्रूफ करेंगे अब। सो प्रूफ, गुड। सो आई टोल्ड यू दैट ये ABC एक राइट ट्रायंगल है, बी से डी के ऊपर बना दिया, जो पहला वाला कंसेप्ट है हमारा प्री रिक्विजिट कंसेप्ट। प्री रिक्विजिट कंसेप्ट मीन्स द कंसेप्ट व्हिच इज यूजफुल टू सॉल्व दिस थ्योरम, ठीक है ना। दिस इज प्री रिक्विजिट नॉलेज या प्री रिक्विजिट कंसेप्ट। हाँ, तो इसमें हमारा ABC में B से बना दिया, D तक परपेंडिकुलर बना दिया, BD मेड परपेंडिकुलर ऑन AC, दैट ये दो राइट ट्रायंगल बन गया और मेन वाला बन गया, तीनों सिमिलर है। कहां से आया? कल दिखा दिया था। तो वही बात है कि अब हमने क्या लूंगा, एक ट्रायंगल ABD लूंगा और बड़े वाले लूंगा। बताओ, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। अभी नेमिंग नहीं पता हमारे को, कल बता दिया था। चलो, तो ट्रायंगल ABD का एक्स्ट्रा करके निकालो। Correct na? C, A is common in both the triangles. A is common. D is B here. D is B here. So इसको कैसे लिखेंगे? If you consider this as first triangle, this as second triangle. C, इसका A का बराबर, no problem, good. Naming. इसका D, इसका B का बराबर, इसका रह गया क्या सा? देखो, इसका इसके साथ आ गया, इसका इसके साथ आ गया, अब इसका रह गया B। तो भाई ए थ्योरम तीसरा वाला लेने का जरूरत ही ना है, तब भी ले लेते यार। एंगल B रहेगा, क्योंकि दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा भी बराबर होता ही है, क्योंकि ये तीनों का बेस हम 180, ये तीनों का बेस हम 180, तो एंगल C। तो बाय ए थ्योरम हमारा इस ट्रायंगल का नाम आएगा ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो यहां पे भी लिखेंगे, वही बात लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल A एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B, ये दोनों ट्रायंगल में। देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। बिफोर नेमिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, राइट नाउ आफ्टर नेमिंग इट शुड बी लाइक इन ए प्रॉपर वे। ये तो नेमिंग से पहले हम दोनों ट्रायंगल लिए थे ना, तो नो प्रॉब्लम। अब इसका प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया ADB और ABC, ये दोनों सिमिलर बना दिए हम, चलो नो प्रॉब्लम। तो इससे हमारे को एक रेशियो आ जाएगा, इससे हमारे को रेशियो ये आ जाएगा, आफ्टर मेकिंग द टू ट्रायंगल सिमिलर यू कैन मेक द रेशियो। कैसे? इसका ये साइड, उसका ये साइड, हाँ AD इसका लूंगा, AD बाई AB, नेक्स्ट इसका DB लूंगा, इसका BC इक्वल टू इसका AB लूंगा, इसका AC। अच्छा, इसका मतलब इसमें कितना इक्वेशन है जी? इसमें 3 इक्वेशन है। कैसे? एक तो इसके साथ ये बराबर, जैसे आपको किसी ने दे दिया x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इसमें कितना इक्वेशन? 3। कैसे मैं बता दूं? एक तो x इक्वल टू वाई, एक y इक्वल टू जेड, एक x इक्वल टू जेड। ये तीनों को अलग अलग भाग कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि तीनों बराबर है। राम इक्वल टू रहीम इक्वल टू श्याम, तीनों का इक्वल मनी है, तो राम और श्याम को भी बराबर है, किसी को हटा भी सकते हैं हमने। दैट मीन्स ये कंडीशन से ये 3 स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसमें से कोई सा ले सकते हैं हमने, जो हमारा यूजफुल होगा वही लेंगे, बाकी हम नहीं लेंगे। हाँ, तो इसमें देखो आप, हमको AB स्क्वायर चाहिए ना प्रूफ करने में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर चाहिए। तो AB स्क्वायर मीन्स, दैट मीन्स ये दो लेंगे हम, क्यों? तभी तो AB स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हमने AD बाई AB इक्वल टू AB बाई AC, ये वाला ना लेंगे। जैसे आपको मैं बोला ये दो एक बार ले सकते हो, एक बार ये दो ले सकते हो, एक बार ये दो ले सकते हो, 3 इक्वेशन है ना इसमें, तो ये दो पार्ट ले लिया, ये दो पार्ट में हमारा जो हमको चाहिए वो आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, नो प्रॉब्लम, रहने दो। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट अब ट्राइंगल लेंगे, ये स्मॉल वाला और ये स्मॉल वाला और मेन बड़े वाला। हाँ, तो ये है बीबीसी, ये है एबीसी। अच्छा, इसका देखो सीसी कॉमन, तो एंगल सीसी, सीसी कॉमन, और इसका डी इसका बी का बराबर है। तो रह गया इसका कौन सा, सबसे पहले इसका सी ले लिया, उसका सी ले लिया, उसका डी ले लिया, इसका बी ले लिया। अब इसका रह गया बी, इसका रह गया ए। तो नेमिंग कैसे होगा, इसका नेमिंग होगा ट्रायंगल सीडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीए। अच्छा, अब इसको इधर लिखूंगा इन ट्रायंगल सीडीबी एंड ट्रायंगल सीबीए, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। देयरफॉर बाय ए थ्योरम, बाय ए थ्योरम कौन सा बराबर होगा, ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। अब इसका रेशियो लगा सकता हूं, बताओ, सी डी बाई सी बी, गुड, डी बी बाई बी ए, गुड, सी बी बाई ए सी। तो इसमें भी हमने यही दो लेंगे, वाई बिकॉज हमको सी बी इंटू सी बी स्क्वायर चाहिए ना, वी नीड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर बराबर है। तो इसमें भी वही बात लूंगा, एक बार ये लिख सकते, एक बार ये ले सकते, एक बार ये ले सकते, तो हम वो वाला लेंगे। तो ओ वाला लेंगे तो आ जाएंगे सी डी बाई सी बी इक्वल टू सी बी बाई ए सी। तो इंप्लाइज हो जाएंगे बी सी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर को मैं बी सी स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई बिकॉज हमने क्वेश्चन में बी सी स्क्वायर लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं। सी बी इंटू सी बी स्क्वायर, सी डी इंटू ए सी, गुड। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमने लिख दिया, कहां से, उसमें प्रूफ करना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर कहां से सिमिलरिटी से क्या आ गया, बी सी स्क्वायर सिमिलरिटी कैसे कैसे क्या आया, इतना लिख लिया, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लिख लो। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, डायग्राम ये तो हमेशा रहना ही चाहिए, डायग्राम मेन डायग्राम ये रहना पड़ेगा। इससे पहले जो ये स्मॉल वाला लिया था ना, ऊपर वाला वो भी रहना पड़ेगा। कौन सा लिया था, ये स्मॉल वाला लिए थे और ये बड़े वाले लिए थे, वो भी रहना पड़ेगा। उसके नीचे ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ये स्मॉल वाला और ये बड़े वाला। मेरा स्पेस नहीं तभी मैं बना रहा हूं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम तो रहना ही पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट दिस, सेकेंड अभी जो मिटा दिया था, थर्ड ये। अच्छा, इसके बाद इधर क्या रहना, ए बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट स्टेप, इसके डायग्राम राइट हैंड साइड में रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो राइटिंग होगा इतना तक आ गया। अब ऐड करूंगा दोनों को, वाई बिकॉज हमारे को प्रूव करना है ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाँ, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ऐड करेंगे हमने। ए बी स्क्वायर में क्या आ गया था, ए डी इंटू ए सी, प्लस बी सी स्क्वायर में कितना आ गया, सी डी इंटू ए सी। तो ये दोनों में क्या कॉमन है जी, ए सी कॉमन है। ब्रैकेट में क्या आ गया, ए डी प्लस सी डी, गुड। तो ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी क्या है, ए डी प्लस सी डी, अगेन ए सी है, ए डी प्लस सी डी ऑल्सो ए सी, सो ए डी प्लस सी डी अगेन विल राइट ए सी। तो ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर। तो दिस इज द प्रूफ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव्ड, पाइथागोरस थ्योरम इज प्रूव्ड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कैसे आया मैं आपको फिर बता देता हूं। तो उसके लिए आपको ये, इसलिए तीनों डायग्राम प्री रिक्विजिट कंसेप्ट यूज कहां पे हुआ बताया, ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो हमने लिया था ना और मेन वाला लिया, वो सिमिलर करके ए बी का स्क्वायर ले आया, ए बी का स्क्वायर ले आया। अच्छा, नेक्स्ट ये नीचे वाला ट्राइंगल जो सिमिलर था ना, ये नीचे वाला किसके साथ था, ये बड़े वाले के साथ, लेकिन उससे क्या लाया, बी सी स्क्वायर लाया और दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करते समय ए सी होल इंटू ए डी प्लस सी डी आ गया, ए सी इंटू ए सी। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। फिर से एक बार इन्हें शॉर्ट बता देता हूँ। ये ट्राइंगल एबीसी का पहले ऊपर वाला स्मॉल ले लिया, राइट ट्राइंगल मेन पेरेंट बड़े वाले के साथ, तो उससे ए बी स्क्वायर ले आए। नेक्स्ट वो डायग्राम हमने मिटा दिया, फिर आपको बताते ही रहना पड़ेगा। सबसे पहले ये डायग्राम, फिर आपने जो ये ऊपर वाला राइट ट्राइंगल और मेन बड़े वाला लिया था वो डायग्राम बनाना पड़ेगा ए बी स्क्वायर निकालने के लिए। नेक्स्ट आपका ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, अभी जो हमने मिटा दिया था ना ये बनाने के लिए। हाँ, वो तीनों डायग्राम रहना पड़ेगा आपको। और फिर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर आपको ले ऐसे
ले आना पड़ेगा, फिर ऐड करके दिखाना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर आपका क्या है, ए डी इंटू ए सी, बी सी स्क्वायर आ गया आपका सी डी इंटू ए सी, फिर ए सी दोनों में है, कॉमन ले लिया, इधर ए डी रह गया, इधर सी डी रह गया, ए डी प्लस सी डी है इन ए सी, तो दैट इज हाउ ए सी स्क्वायर इज। तो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। प्रैक्टिस कर लेना, इसका क्वेश्चन कर लेना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसका कन्वर्स कल करेंगे। ट्रायंगल में ईच एंड एवरी थ्योरम हैज इट्स कन्वर्स। दैट मींस कन्वर्स मींस Pythagoras theorem says that in a right triangle this happens, perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square. Its converse will be saying like this, if perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square given, then prove that that is a right triangle. Like BPT, जो गिवन कंडीशन था उससे हमने प्रूफ ये मिल जाता था। अब क्या होता, वो गिवन दिया रहेगा, इसको प्रूव करना है, तो कन्वर्स आपको कल बताऊंगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू ट्राई दिस एट होम, गॉट इट ना, यू ट्राई दिस एट होम। ओके, थैंक यू।